Welcome, friends. From today, we are starting daily capsules for IBC. So, IBC is a law which came into India in 2016, and the primary function of this law was to make a proper functionality for resolution of the entities which go into CIRP process or a liquidation process. So, if a company is under bankruptcy or is going under a financial crisis, and then the company wants some kind of resolution or maybe liquidation, then that company falls under the ambit of IBC law. So we will be discussing more details about IBC in some another session. So today's topic, what I'm picking up is the most controversial section of the entire act, which is section 29A. So let's start for today's session. So to understand the section 29A, first thing what we need to understand is the preamble of IBC, that why IBC came into picture. IBC क्यों आया? So basically IBC came to consolidate many laws which were existing in India for doing liquidation or a resolution process for those kind of companies which go into bankruptcy and insolvency. So there are so many laws in India. So to consolidate them, IBC was formed. The second thing, what it was, another preamble for IBC was to close these kind of cases in a time bound manner. So there was a calculation done, and it was found that in India, if a company wanted to liquidate itself or it wanted to shut down itself, it used to take more than 4.5 years. Okay, under IBC, this process is done within 330 days to maximum. And the third part was to make sure that the ability of the liquidation or insolvency has been transferred from the hands of debtor to the hands of creditors. Okay, so that now the law clearly says that creditors are in the control of the liquidation and insolvency. Okay, so it was more towards promoting entrepreneurship. So by way of resolution process, more entrepreneurs could come and participate into the resolution process and make sure that the company survives as a going concern and not only mere liquidation was not an option. So coming to section 29A. So by now you would have understood that what we are dealing with is we are dealing about a resolution process which will be implemented in any organization which is under some kind of financial stress or is bankrupt. सो जब आपको कभी भी किस इस तरीके का एंटिटी का रिकंस्ट्रक्शन करना है या फिर तो उसको वापस से नया तरीके से स्टार्ट करना है, सो प्राइमा फेसी लॉ क्या बोलता है कि आपको उसको गोइंग कंसर्न की तरह चलाना है। एंड आपको अगर किसी चीज को गोइंग कंसर्न की तरह चलाना है, देन समबडी हैज टू रन इट। ओके, द ओल्ड मैनेजमेंट जिसने गलतियां की है वो उसको नहीं चला सकता। सो जब ये लॉ बना था, व्हेन दिस लॉ वाज इनेक्टेड, देयर वाज नो सच प्रोविजन वेयर बाय द ओल्ड मैनेजमेंट कुड नॉट टेक इट ओवर। ओके, पहले जो लॉ था उसमें ओल्ड मैनेजमेंट कुड इजीली टेक ओवर द पर्टिकुलर company, but with the enactments which came up in November 2017, this particular section 29A was passed, which stopped the people who has done any kind of wrongdoing to take up this process of resolution. So in simple words, if I have to explain you, जिसने गलती की है वो रेजोल्यूशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे एलोबोरेटेड द एंटायर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 29A, and we will look into it for more details ki what we have to understand from this section. So basically to start with section 29A, first we need to understand कि ये exactly किस लोगों को ऊपर binding है। Okay, so section 29A is binding on the resolution applicant. So what is resolution applicant? Resolution applicant as defined under section 2 subsection 25 of the act means a person who is individually or jointly with any other person submits a resolution plan to the resolution professional pursuant to an invitation made under clause H of subsection 2 of section 25. So now if you have to go in details, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या क्या है। एक है वर्ड आपका individually और jointly submits a resolution plan, उसको एक resolution plan submit करना है to a resolution professional pursuant to an invitation. Okay, मतलब what all things it covers? It covers कि मतलब if I want to apply, I can apply. I have a company or I have one of my friend who also wants to apply, so me and he jointly can apply.
we both can only apply if there is an invitation given to us. Okay, there is an invitation floated by a resolution professional stating that you guys can apply. Okay, so now what will be this invitation? What will be the details of this invitation? There will be many criteria which will define that which people can be eligible to appoint. Okay, so that we will study in some other session. But basically it is कि resolution applicant वो आदमी हो सकता है जो खुद अपने आप या फिर तो किसी और के साथ जॉइंटली एक प्लान बनाता है और वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के इनविटेशन पे उस प्लान को फ्लोट करता है टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. From the above definition, we can say that resolution application can himself or with another file a resolution process. So, if I have to understand, यहाँ पे what becomes very critical is to understand definition of person. Okay, any other person, यहाँ पे जो ये person है, इस word का definition समझना बहुत जरूरी है. Person किसको किसको include करता है? तो section 523 person को define करता है. उसमें आता है individual, HUF, company, trust, partnership, a limited liability, and any other established by the statute, and includes person resident outside India. So you will see the definition is very large. Okay, मतलब ये किसी चीज को नहीं छोड़ रहा. मतलब इस definition में, person की definition में आप जो कुछ भी सोच सकते थे उन्होंने उस सारी चीजों को include कर दिया है. ओके, सो बेसिकली एक लैंडमार्क जजमेंट थी स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड की, जहां पे उस जजमेंट के बाद प्राइमरी 29A आया था. सो ये जजमेंट क्या बोलती है? द प्राइमरी फोकस ऑफ द लेजिस्लेशन इज टू इंश्योर रिवाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय प्रोटेक्टिंग द कॉर्पोरेट डेटर फ्रॉम इट्स ओन मैनेजमेंट एंड फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेथ ऑफ लिक्विडेशन. जिस बंदे ने गलती की थी मुझे उससे आपको बचाना है, मेरे को उस कंपनी को उस पर्टिकुलर डेटर, उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट से बचाना है जिसने इस स्थिति पे लाया है कि आज आपको लिक्विडेट होना पड़ रहा है या फिर तो आज आपके ऊपर इंसॉल्वेंसी आ गई है. सो स्विस रिबन के केस में ये डिक्टेट हुआ था कि जो आदमी ने गलती की है हम उसे वापस मौका नहीं देंगे. सो ये क्या है? दिस इज A-92. इसका मतलब क्या हुआ? ये सेक्शन को आप उल्टा तरीके से पढ़िए. इट इज 29A. सो 29A इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. ओके, सो वी विल रीड इट कि इट इज अ बार ऑन हु. इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. सो सबसे पहले आते हैं, पढ़ते हैं कि किन लोगों के ऊपर ये नहीं अप्लाई कर सकता है. ओके, अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जॉइंटली इन कंसर्ट. मतलब मैं खुद या फिर तो मेरे साथ और कोई, मतलब अगर अपने एग्जांपल में लेते हैं, एक मिस्टर राम है और राम एंड लक्ष्मण दोनों, उसमें से राम के ऊपर भी अगर इसमें से कोई पॉइंट के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं या फिर तो लक्ष्मण जिसके साथ वो फाइल कर रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई करते हैं. हो सकता है मिस्टर राम डिस्क्वालीफाइड नहीं है बट मिस्टर लक्ष्मण इज डिस्क्वालीफाइड, तो वो पूरा राम एंड लक्ष्मण एज अ कंसोलिडेटेड डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. सो आइए एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं. पहला पॉइंट है इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट. अगर मैं खुद इंसॉल्वेंट हूं तो मैं किसी और कंपनी का रिवाइवल के लिए फाइल नहीं कर सकता. पॉइंट नंबर 2, विलफुल डिफॉल्टर. सिंपल एग्जांपल, आपको मैं अगर बोलूं विजय माल्या, कैन ही गो अहेड एंड फाइल अ इंसॉल्वेंसी? किसी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की तरह कहीं पे वो फाइल कर सकता है? आंसर इज नो. जो खुद चोरी करके भाग गया है उसको मैं थोड़ी ना कोई और कंपनी चलाने के लिए दूंगा कि सर आप आके इस कंपनी को चलाओ. ओके, एग्जांपल मिस्टर भूषण ऑफ भूषण स्टील्स, वहां पे भी वो भी नहीं कर सकते. पॉइंट नंबर डी आते हैं. पॉइंट नंबर सी मिसिंग है. पॉइंट नंबर सी पे हम लोग अलग से आएंगे. पॉइंट नंबर डी करते हैं. एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर इम्प्रिजनमेंट अंडर 12th शेड्यूल ऑफ द एक्ट. उसमें उसको 2 साल का कूलिंग पीरियड दिया गया है कि अगर 2 साल के लिए उसको वहां पे डाला है तो अगर वो 2 साल की सजा उसको हुई है तो वो 12th शेड्यूल में बिलोंग करता है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. वो 2 साल की सजा होने के बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड दिया गया है, उस 2 साल के बाद वो कर सकता है. मतलब टोटल में 4 साल उसकी सजा हो गई, वो 2 साल प्लस 2 साल और अगर उसके हो गए हैं उस कूलिंग पीरियड को, तो वो कर सकता है. ओके, जहां पे और कोई लॉ है जो 12th शेड्यूल में कवर्ड नहीं है, वहां पे 7 साल का पीरियड है, तो 7+2 का पीरियड आपका माना जाएगा. ओके, जहां पे कोई आदमी जिसकी सजा 2 ईयर से कम है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है. दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द पीपल हु हैज बीन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर.
और 7 इयर्स और मोर। तो जब 2 इयर्स का प्रोविजन देखेंगे तब आईबीसी के 12th शेड्यूल वाले सारे एक्ट देखेंगे। जब 7 ईयर का प्रोविजन देखेंगे तब आईबीसी के 12th शेड्यूल में जो सारी एक्ट फॉल नहीं कर रही है उसमें देखेंगे। इन दोनों में आईबीसी एक्ट ने 2 साल का कूलिंग पीरियड दिया हुआ है। अगर आप वो 2 साल का कूलिंग पीरियड पास कर लेते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टू अप्लाई एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। पॉइंट नंबर ई आपको क्या बोलता है, डिस्क्वालिफिकेशन एज अ डायरेक्टर इन कंपनीज एक्ट 2013। ये सिंपल, अगर आप कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर्स में डिस्क्वालिफाइड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर सी आते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द एंटायर 29A। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे। सो मान लीजिए एक कंपनी है जिसने एक एनपीए किया हुआ है, एक कंपनी है जिसने एनपीए किया हुआ है। एनपीए की डेफिनेशन सिंपल टर्म्स में अगर आप मेरे को पूछेंगे तो है जहां पे आपका लोन डिफॉल्ट हुआ 90 डेज हो गया है, ओके। और एक उस कंपनी का प्रमोटर है, तो वो कंपनी का प्रमोटर भी डिस्क्वालिफाइड है। अगर उस कंपनी की मैनेजमेंट है तो उस कंपनी की मैनेजमेंट में भी जो लोग आते हैं वो भी डिस्क्वालिफाइड है। उस कंपनी का जो कंट्रोल करता है वो पर्टिकुलर लोग भी डिस्क्वालिफाइड है। तो अगर मेरे को तीनों का एग्जांपल देना है तो मैंने अलग अलग टाइप के फोटोज इसलिए लगाए हैं टू एक्सप्लेन, यहाँ पे इंडिविजुअल और कंपनी दोनों हो सकते हैं। तो सोचिए फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है और ये कंपनी का नाम है XYZ, ओके। और ये कंपनी जिसने प्रीडोमिनेंटली लोन लिया था और एनपीए किया है ये है आपकी एबीसी। तो स्टोरी को समझते हैं कि एक एबीसी लिमिटेड है, इसने से फॉर एग्जांपल एसबीआई से 100 करोड़ का लोन लिया था एंड अब इसने इसको एनपीए कर दिया है, ओके। इट हैज एनपीए डिफॉल्ट कर दिया है, 90 डेज पास हो गए हैं, ओके। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि ये कंपनी खुद तो किसी अपनी सीआईआरपी के टाइम पे भी खुद फाइल नहीं कर सकता, प्लस किसी और के लिए भी ये फाइल नहीं कर सकता। मिस्टर ए जो इस कंपनी के प्रमोटर थे वो भी किसी और कंपनी का रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के फाइल नहीं कर सकते, ना अपनी कंपनी के लिए फाइल कर सकते हैं। मिस्टर बी जो इस कंपनी की मैनेजमेंट में थे, मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल टर्म से बोलूं तो ये कंपनी के डायरेक्टर थे, ओके, ही आल्सो कांट फाइल। एंड कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे कोई और XYZ इस कंपनी का 51% शेयर के ऊपर होल्ड करती थी, 50% के ऊपर जाते ही आपका कंट्रोल आ जाता है। अगर XYZ इस कंपनी की कंट्रोलिंग में थी तो वो भी किसी कंपनी के लिए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के फाइलिंग नहीं कर सकती है। बट एक्ट में आपको ये बोला गया है कि अगर आपका एनपीए मोर देन 1 ईयर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका एनपीए लेस देन 1 ईयर है, इफ योर एनपीए इज लेस देन 1 ईयर तो आपके ऊपर कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। बट अगर आपका एनपीए इज मोर देन 1 ईयर तो आप एलिजिबल नहीं हो। बट यहाँ पे आपको एक्ट बनाने वाले की खूबी देखनी पड़ेगी। उसने क्या बोला कि अगर आपका एनपीए मोर देन 1 ईयर है और आप पूरा का पूरा पैसा चुका देते हो, यू क्लियर द एंटायर एनपीए, आप पूरा का पूरा एनपीए चुका देते हो, देन यू बिकम्स एलिजिबल। तो इससे क्या हुआ, जितने लोगों का एनपीए था एंड हु वर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, दे ऑल क्लियर्ड दैट एज ओल्ड एनपीएस, 4-5 साल पुराने एनपीएस जो थे उन्होंने अपने एनपीएस को क्लियर किया जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इनटू अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट प्रोसेस। सो दिस वाज अ वेरी बिग मूव बाय अरुण जेटलीज गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर क्लॉज इनटू द पिक्चर एंड गेट लॉट ऑफ ओल्ड एनपीएस क्लियर्ड। सो ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर आप एक कंपनी के प्रमोटर हो, मैनेजमेंट में हो या फिर तो कंट्रोल में हो, जिस कंपनी ने एनपीए किया हुआ है तो आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते अगर वो एनपीए 1 साल से ज्यादा का है। बट अगर आप वो एनपीए क्लियर कर देते हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर एनपीए 1 साल से कम का है तो आप आराम से क्वालिफाइड हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। बट अब समझते हैं कि एक थर्ड पार्टी है, ये सोच लीजिए ये मिस्टर सी है, ओके, एंड ही इज अ कंपनी जिसका कोई डिफॉल्ट नहीं था, बट इस बंदे ने ये वाली जो एबीसी है उसको अक्वायर किया। ही अक्वायर्ड दिस एबीसी अंडर अ रेजोल्यूशन प्रोसेस। मिस्टर सी ने अक्वायर किया ये कंपनी जिसने एनपीए किया हुआ था अंडर अ सीआईआरपी प्रोसेस, ओके। तो आज के दिन में सिंपल टर्म्स में बोल सकता हूं कि मिस्टर सी भी एक एनपीए है। अगर मैं मिस्टर सी हूं और मैंने एक कंपनी जिसने एनपीए किया हुआ है उसको सीआईआरपी में एक्वायर किया, तो इन सिंपल टर्म्स आई हैव आल्सो डन अ पर्टिकुलर एनपीए। बट
मैंने जब सीआईआरपी में प्रपोज किया होगा तो मैंने कुछ तो बोला होगा कि मैं इतने टाइम तक आपका एनपीए चुकाऊंगा, देयर हैज टू बी सम टाइमलाइंस व्हिच आई वुड हैव कमिटेड। सो एक्ट क्या बोलती है, अगर आपने कोई ऐसी कंपनी एक्वायर की है जो सीआईआरपी के थ्रू आपने एक्वायर की है और जो एनपीए है, तो आपको 3 साल का टाइम मैं देता हूं। आप 3 साल के अंदर अगर आपने और कोई कंपनी एक्वायर करनी है, ओके, सो नाउ इफ मिस्टर सी wants to acquire another company, say for example राम लिमिटेड को acquire करना है जो एक सीआईआरपी प्रोसेस के अंडर आई हुई है, ओके, सो क्या मिस्टर सी इनएलिजिबल होंगे? आंसर इज नो, जस्ट मियर बिकॉज मिस्टर सी टुक ओवर एबीसी अंडर अ सीआईआरपी प्रोसेस, ही विल नॉट बी इनएलिजिबल टिल द पीरियड ऑफ 3 years, ओके, टिल द पीरियड ऑफ 3 years। अगर वो लोन चुकाने में 4 साल कर देते हैं या 5 साल कर देते हैं तो ही बिकम्स इनएलिजिबल। बट अगर वो पीरियड ऑफ 3 years हैज नॉट एक्सपायर्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन मिस्टर सी एक्वायर्ड एबीसी लिमिटेड अंडर सीआईआरपी, ही इज एलिजिबल टू बिड फॉर द सीआईआरपी प्रोसेस ऑफ राम लिमिटेड। ओके, सो ये आपको जनरल टर्म्स में ये सेक्शन है। आप सेक्शन को जब स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप सेक्शन को पढ़ सकते हैं। पॉइंट एफ पे आते हैं। कोई भी प्रोहिबिशन आपके ऊपर लगाया गया है, प्रोहिबिटेड बाय सेबी, अगर सेबी ने आपको प्रोहिबिट किया हुआ है तो आप इनएलिजिबल हो। पॉइंट नंबर जी आते हैं। इट डिबार्स प्रमोटर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ डेटर इन विच प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, undervalue transaction or extravagant credit transaction or a fraudulent transaction has happened. So section 43, 45, 50 and section 66 of the act में कोई भी transaction हुआ है by the promoter, by the management or the control. promoter, management and control का मतलब आप अभी तक समझ गए होंगे इसके previous slide से। It's exactly the same। अगर आपकी कंपनी में ये ट्रांजेक्शन हुए हैं अंडर सेक्शन 43, 45, 50 या 66, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, प्रोवाइडेड, जैसे हमने प्रीवियस केस में पढ़ा कि आप एक इंडिविजुअल थे या फिर तो आप कोई कंपनी थे जिसने एक कंपनी को एक्वायर किया है सीआईआरपी, जिसका एक ऐसा डिबारिंग किया हुआ था जिस कंपनी पे, मतलब जैसे अगर अपने पुराने एग्जांपल में चले कि अगर यहाँ पे जैसे एबीसी लिमिटेड था, इसमें था प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन या आपका अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन या फिर तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन, और मिस्टर सी ने इसको एक्वायर किया था, ओके, तो मिस्टर सी ने एक्वायर किया था, उसके पहले हुए प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन थे ये, तो मिस्टर सी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मिस्टर सी डिस्क्वालीफाई तभी होंगे कि अगर ये सारे ट्रांजैक्शन आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एबीसी लिमिटेड होंगे। तो अगर मिस्टर सी ने एक्वायर किया था उसके पहले ये सेक्शन 43, 45, 50 और 66 से ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो मिस्टर सी इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रेजोल्यूशन एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। पॉइंट नंबर एच पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर एच बोलता है हैज एग्जीक्यूटेड अ गारंटी इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर in respect of a corporate debtor against which an application of insolvency resolution made by such creditor has been admitted। in simple terms, अगर आपने किसी कॉर्पोरेट डेटर के साथ मिलकर या किसी कॉर्पोरेट डेटर के लिए आपने एक कॉर्पोरेट गारंटी दी हुई है एक क्रेडिटर को, एंड आज के दिन पे वो पर्टिकुलर कंपनी जिसके बिहाफ पे आपने गारंटी दी थी वो लिक्विडेशन या फिर तो सीआईआरपी प्रोसेस में आ गई है, तो आप भी एलिजिबल नहीं हो। Point number I, subject to any disability corresponding to A to H under any law in jurisdiction outside India। सिंपल है, आपको यहाँ पे मैंने अभी तक जितने पॉइंट समझाए हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन आउटसाइड इंडिया है, ओके। से फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं पॉइंट नंबर एफ बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ बाय सेबी, तो सोचिए आप नेस्डैक पे लिस्टेड हो, आप कहीं और लिस्टेड हो, उसकी स्टॉक एक्सचेंज में आप प्रोहिबिटेड हो, तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली फाइलिंग नहीं कर पाओगे, आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन पाओगे। सो यू हैव टू चेक द अदर लॉज ऑल्सो। सो आप सोच लीजिए आपकी एम्बिट कितनी बड़ी है यहाँ पे। सो क्या एज अ आप एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो तो आप इतना चेकिंग कर पाओगे? सो एक्ट बोलता है आपको चेकिंग नहीं करनी है, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेना है इन लोगों से जो आपके पास आ रहे हैं एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की वो इन कोई भी पॉइंट में डिस्क्वालिफाइड नहीं है। एज अ इंडिविजुअल, एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप में ही एक अलग टास्क हो जाएगा। तो एक्ट क्लियरली बोलता है कि यू डोंट हैव टू चेक बट यू हैव टू टेक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ऑल द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स दैट दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर ईदर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन।
सो पॉइंट नंबर आई क्लियरली स्टेट्स कि कोई भी एक्ट आउटसाइड इंडिया में भी अगर वो डिस्क्वालिफाइड है इन अबव क्लॉजेज, तो A to H के क्लॉजेज में अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो वो नॉट एलिजिबल होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं लास्ट पॉइंट। ओके, ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, पहले हम लोग इसको एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये है, क्या बोलता है, अगर कोई भी कनेक्टेड पर्सन भी है, जो आपका पॉइंट नंबर ए से आई जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, उसका कोई कनेक्टेड पर्सन भी है तो वो भी इनएलिजिबल है। मतलब अगर आप इनएलिजिबल हो और आपके साथ और कोई आपके थ्रू कनेक्टेड पर्सन भी है तो वो पर्सन भी इनएलिजिबल है। ओके, सो यहाँ पे फिर एक्ट ने एक्सप्लेनेशन के द्वारा कनेक्टेड पर्सन को एक्सप्लेन किया है। एनी पर्सन हु इज ऑलरेडी द प्रमोटर और इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ओके, तो हमारा डायग्राम में देखेंगे कि अगर एबीसी लिमिटेड जो थी हमारी, एबीसी लिमिटेड, अगर उसका रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, अगर वो एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, मान लीजिए दिस इज एबीसी इज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो डिस्क्वालिफाइड है। ओके, वो क्लॉज नंबर ए टू एच के अकॉर्डिंगली डिस्क्वालिफाइड है। ओके, फॉर एनी पर्पसेस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए टू आई वो डिस्क्वालिफाइड है। ओके, तो उसका कोई भी कंट्रोलिंग एंटिटी या फिर तो उसका प्रमोटर या फिर तो उसका मैनेजमेंट, ये लोग भी डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। अगर मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मैंने किसी और कंपनी का सीआईआरपी के लिए अप्लाई किया और मैं ऊपर में लिखे हुए सारे क्लॉज ए टू आई में डिस्क्वालिफाइड हूं, तो मेरी कंपनी का प्रमोटर, मेरी कंपनी की मैनेजमेंट और मेरी कंपनी को जो कंट्रोल करता है, ओके, जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स है, उन लोग भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे पीपल स्टार्टेड टेकिंग अ यू टर्न। पीपल क्या करने लगे, बोले कि मैं डायरेक्टली मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं डिस्क्वालिफाइड हूं, मैं और लेयर्स क्रिएट कर करके, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप क्रिएट करके या फिर तो मिसलिनियस कंपनी को द्वारा फंडिंग करवा के मैं एक बार तो प्लान अप्रूव करवा लेता हूं, बाद में मैं उस कंपनी को टेक ओवर कर लूंगा। तो ये एक्ट क्या बोलती है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर नॉट एलिजिबल। मतलब आज और कल आप दोनों में अगर आपकी कंपनी में कहीं से भी इनएलिजिबिलिटी आती है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। सो एक्ट इज वेरी फोरसाइटेड, कोड बहुत ज्यादा फोरसाइटेड है एंड उन्होंने सारी पॉसिबल इवेंट्स को कवर किया हुआ है। सो उसने कवर किया हुआ है जो टुडे प्रेजेंट कंट्रोल, प्रमोटर या मैनेजमेंट है वो इनएलिजिबल है। फ्यूचर मतलब जो शैल भी होंगे, जो शैल बिकम प्रमोटर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। एनी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट और द रिलेटेड पार्टी ऑफ द पर्सन रिफर्ड इन क्लॉज 1 एंड 2। तो ये क्लॉज 1 है एक्सप्लेनेशन का, ये क्लॉज 2 है एक्सप्लेनेशन का, तो उन लोग भी नहीं एलिजिबल होंगे। सो नाउ यू विल गिव मी द मेरिट। मैंने यहाँ पे ये फोटोज क्यों लगाए हैं, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके ऊपर रिलेटेड पार्टी वाला क्लॉज अप्लाई करता है, अगर आप कॉर्पोरेट हो तो आपके ऊपर होल्डिंग सब्सिडरी वाला क्लॉज अप्लाई करता है। दैट इज द रीजन फॉर पुटिंग दिस काइंड ऑफ फिगर, सो दैट यू नेवर फॉरगेट कि अगर आप एक एंटिटी हो तो आपके ऊपर होल्डिंग सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनी अगर आपकी है तो उन लोग भी इनएलिजिबल है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपकी जो रिलेटेड पार्टी है उन लोग भी इनएलिजिबल है। अब आप मेरे को पूछेंगे सर आपने बता तो दिया, अब रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हम लोग कहाँ से ले, अपने सारे लॉ में कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पे आपको कंपनी अगर हो तो सेक्शन 524 में जो डेफिनेशन दी हुई है वो लेनी है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको 524A की डेफिनेशन लेनी है। यू मे रिफर, प्लीज नोट, यू मे रिफर रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑल्सो। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, बट यहाँ पे क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन करते करते पॉइंट 1 2 3 हमने पढ़ लिए। ओके, अब यहाँ पे और क्या चीज बताइए, प्रोवाइडेड दैट, प्लीज पे 100% अटेंशन टू दिस सेंटेंस, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लॉज 3, मतलब ये वाला जो क्लॉज है उसमें ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 शेल अप्लाई टू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वेयर सच एप्लीकेंट इज अ फाइनेंशियल एंटिटी एंड नॉट अ रिलेटेड पार्टी। मतलब अगर मैं एक फाइनेंशियल एंटिटी हूं और मैं उस कंपनी का रिलेटेड पार्टी नहीं हूं तो मेरे पे ऊपर वाले एक्सप्लेनेशंस अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये क्यों ये प्रोविजो क्यों लाया गया था। कभी भी कोई कोड में या एक्ट में प्रोविजो आता है तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना होता है, बिकॉज एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये प्रोविजन इसलिए लाया गया था, जनरली फाइनेंशियल एंटिटीज आर द एंटिटीज हु हैव दैट काइंड ऑफ मनी to pump in into the liquidated company or the company which is under the financial crisis
वो फाइनेंशियल एंटिटीज ही ऐसी कंपनीज होती है जो वहां पे पैसा डाल सकती है। अगर मैं उनको भी इनएलिजिबल कर दूंगा, इफ आई मेक दोज कंपनीज ऑल्सो इनएलिजिबल, देन हु विल ब्रिंग दैट काइंड ऑफ मनी? आज के दिन वो पैसा कौन लाएगा? सो स्पेसिफिकली ये एक्ट ने इन लोगों को अलग कर दिया है कि अगर आप फाइनेंशियल एंटिटी हो और अगर आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो तो आप एलिजिबल हो ऑटोमेटिकली टू पार्टिसिपेट। एक्ट ऑल्सो मेंशन्ड कि आप बाय एनी रीजन, आप एक फाइनेंशियल एंटिटी हो और आप बाय एनी रीजन रिलेटेड पार्टी बन जाते हो, बट दैट रीजन इज जस्ट मियर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन कन्वर्जन ऑफ योर लाइबिलिटी। तो से फॉर एग्जांपल आप एसबीआई लिमिटेड, आप एसबीआई हो, आपने 100 करोड़ का लोन दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड को। ओके, ये एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड बोलती है सर मेरे पास पैसे तो नहीं है बट आप मेरे से 100 करोड़ के जितने इक्विटी शेयर ले लो। तो यहाँ पे आप कंट्रोल में आ जाते हो, यहाँ पे आप रिलेटेड पार्टी बन जाते हो, बट यू आर बिकमिंग रिलेटेड पार्टी परसुएंट टू अ ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ योर लोन इनटू इक्विटी। सो आपका ऐसे कोई रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप नहीं था वहां पे, बट आप परसुएंट टू कन्वर्जन बन जा रहे हो, तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। सो अगर आप कोई फाइनेंशियल एंटिटी हो जो इस कंपनी में पैसा लगाना चाहती है तो आपको एग्जेम्प्ट किया गया है डेफिनेशन और डिस्क्वालिफिकेशन से, सो दैट सच फाइनेंशियल एंटिटीज कैन पुट द मनी। एक्सप्लेनेशन 2 फाइनेंशियल एंटिटी को डिफाइन करता है। फाइनेंशियल एंटिटी को कौन क्या क्या आते हैं? शेड्यूल बैंक आती है, फॉरेन सेंट्रल बैंक आती है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आते हैं, एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आती है, एंड एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं, और एनी अदर एंटिटी विच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सर इसमें ये एंटायर सेक्शन 29A को कवर करता है। The only thing I would like to explain you is in this particular section which was like clause C. Clause C में NPA की definition जो है ये बहुत ब्रॉड कर दी है। सब पहले ये खाली RBI के अंडर में डिफाइंड थी, बट नाउ अगर और कोई लॉ में भी, इफ इन एनी अदर लॉ में भी अगर एनपीए डिफाइंड है तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है। सो दैट हैज इलोबरेटेड द डेफिनेशन ऑफ एनपीए। सो आरबीआई प्लस एनी अदर लॉ, जैसे हाउसिंग कॉर्पोरेशन का भी अपना लॉ होता है, उसमें भी एनपीए डिफाइंड है। तो एम्बिट ऑफ एनपीए इन लोग ने बढ़ा दी है। अगर और कहीं पे भी आप एनपीए हो रहे हो तो यू विल बी क्लासिफाइड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो दिस इज एंटायर सेक्शन 29A फॉर यू। सो थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।